انتخابات کے بعد سیاسی کھچڑی ہنڈیا میں لگنے لگی یعنی جلنے لگی ہے۔ یہی معاملات ہیں عام انتخابات کے بعد جہاں کوئی بھی جماعت اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے اور اب حکومت کی تشکیل ایک مشن امپاسبل بنتا جا رہا ہے، جہاں نون لیگ تو دیگر جماعتوں کو حکومت سازی کے لیے مل کر چلنے کی دعوت دے رہی ہے مگر ان کے ساتھ عملاً کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی نے ہاتھ صاف کھڑے کر دیے ہیں۔ زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ بھی لگا دیا ہے۔ ان کی جماعت حکومت سازی میں تعاون تو کرے گی مگر کابینہ کا حصہ نہیں بنے گی، ابھی تک وہ یہی کہہ رہے ہیں، اور آئینی عہدوں کی ڈیمانڈ بہرحال ان کی طرف سے ہے۔ اور دوسری جانب مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کریں جس پر آج ہم پروگرام کے آغاز سے بات کر رہے ہیں، کل سے وہ شدید بپھرے نظر آتے ہیں۔ الیکشن ملتوی نہ ہونے کا غصہ ہے ان کو، یا نون لیگ کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ کرنے کا غم ہے، یا پھر الیکشن میں مطلوبہ سیٹیں نہ ملنے کا شکوہ ہے؟ کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن بینچوں میں بیٹھیں گے؟ اس پر بات کرتے ہیں۔ صحافی تجزیہ کار طلعت حسین صاحب ساتھ موجود ہیں۔ طلعت صاحب بہت شکریہ۔ طلعت صاحب، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ناراضی، غصہ، یہ سب کیا ہے؟ کیا واقعی کوئی انہیں کال نہیں کر رہا، کوئی ان سے بات نہیں کر رہا، کوئی ان کو اس سسٹم میں لے کر نہیں آ رہا، یا کہ کوئی دھوکہ دیا گیا ہے جماعتوں کی طرف سے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کوئی ایسا وعدہ، ایسی بات کی گئی تھی جو کہ پوری نہیں کی گئی کہ جس کا اب وہ بدلہ لے رہے ہیں اس طرح کی پریس کانفرنس کر کے؟ دیکھیں، ایک تو ذاتی معاملہ ہے، ان کی شکست پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کے ہاتھوں ہوئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا ملاقڑہ بہت عرصے سے عمران خان سے چل رہا ہے، دونوں ذاتی ایک دوسرے پر حملے کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کا۔ مولانا فضل الرحمان کو یہودی ایجنٹ کہتے ہیں، وہ ان کو مولانا ڈیزل کہہ کے ان کا توا لگاتے ہیں، اگر عام ہم لفظ استعمال کریں پنجابی کا، تو ایک ذاتی مخاصمت بھی ہے۔ تو ذاتی طور پر جب آپ لڑائی میں پڑ جاتے ہیں تو پھر جب شکست ہوتی ہے تو زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان کی توقع یہ تھی کہ خیبر پختونخوا کے اندر وہ کارکردگی ٹھیک دکھائیں گے، اور آخری وقت تک ان کے جو گورنر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے جب ہم بات کرتے تھے تو وہ حکومت سازی کی بات کر رہے تھے خیبر پختونخوا کے اندر۔ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ بلوچستان سے وہ ڈھیر سیٹیں اٹھائیں گے۔ بلوچستان سے ان کو خیر سیٹیں ملی ہیں لیکن ان کی توقعات سے کم ملی ہیں۔ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ ان کی مرکزی قیادت اس مرتبہ انتخابات کے اندر اچھی کارکردگی دکھائے گی اور وہ مرکز کے اندر بھی رول پلے کر پائیں گے۔ تو انہوں نے اپنے لیے ایک پورا روڈ میپ بنایا ہوا تھا مستقبل میں جانے کے لیے، مرکز میں بھی، بلوچستان میں بھی اور خیبر پختونخوا میں۔ اب وہ روڈ میپ جو ہے شیٹر ہو گیا ہے، تو ظاہر ان کو بہت غصہ ہے۔ اور جب آپ کے پاس نمبرز نہیں ہیں، آپ حکومت سازی کا حصہ نہیں ہیں، تو پھر آٹومیٹیکلی پارلیمنٹری سسٹم کے اندر جہاں پہ میجورٹی رول کرتی ہے، آپ سائیڈ لائن ہوتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ تو 3-4 فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے وہ غصے میں ہیں۔ اچھا، تو طلعت صاحب، اب آپ معاملات کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ آپ نون لیگ کے پرسپیکٹیو سے دیکھو، کیا واقعی ریزلٹس ان کے لیے ان ایکسپیکٹڈ تھے؟ یہ چیز وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ ہو جائے گا؟ مولانا فضل الرحمان نے کل نواز شریف کے لیے لاڈلے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ میں بھی آپ کی ٹرانسمیشن بھی دیکھ رہا تھا، کفایت اللہ صاحب نے بھی یہی لفظ بار بار دہرایا اور کہا کہ نواز شریف لاڈلا ہے۔ اگر آپ نواز شریف کی تاریخ دیکھیں تو اس کے اندر کوئی لاڈلے پن کی آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے صفت نظر آتی نہیں۔ اگر ان کے آپ کیریئر کا پہلا حصہ چھوڑ دیں، اور سب کے سیاسی کیریئرز کا پہلا حصہ میں چھوڑنا ہی پڑے گا، ذوالفقار علی بھٹو کا بھی کیریئر کا پہلا حصہ چھوڑنا پڑے گا، عمران خان کا بھی کیریئر کا پہلا حصہ چھوڑنا پڑے گا، نواز شریف کا بھی۔ اس وقت سے لے کے ابھی تک دیکھیں تو وہ 3 مرتبہ، عمران خان کو تو 1 مرتبہ کہتے ہیں نکالا گیا، نواز شریف کو 3 مرتبہ نکالا گیا۔ اگر وہ ڈاڈلے ہوتے تو 2018 کی طرح کے نتائج ان کے حق میں آتے، جب تمام رزلٹ ٹرانسفر کرنے کا سسٹم بٹھا دیا گیا تھا اور عمران خان کو اتحادیوں کے ساتھ جوڑ کر ایک سمپل اور کمفرٹیبل میجورٹی دی گئی تھی، اور ساتھ ہی ان کو بہت احسان کرتے ہوئے قوم کے سر پر ان کو چلایا گیا تھا۔ پارلیمنٹ کے اندر ان کی میجورٹی پوری کرنی ہو، بل کے لیے ان کو اکثریت لے کرنی ہو۔ لاڈلے ایسے ہوتے ہیں۔ اگر نواز شریف لاڈلے ہوتے نا تو اس وقت نواز شریف کے تمام بندے جیت کر مرکز میں کمفرٹیبل میجورٹی بنا پاتے۔ تو میرے خیال میں جو لاڈلا پن نواز شریف کا ہے اس کے اندر بہت زیادہ خامیاں ہیں اس ایکوزیشن میں، لیکن مولانا اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو اپنی طرف لا کر وہ چاہ یہ رہے ہیں کہ مرکز کے اندر حکومت سازی میں کسی نہ کسی طریقے سے رول پلے کر پائے۔ نواز شریف خود بہت خوش نہیں ہے نتائج سے۔ نواز شریف کی اپنی سیٹ کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے۔ مانسہرہ کا آپ نے ذکر کیا، مانسہرہ کو انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے، وہ ان کی پکی تگڑی سیٹ ہوا کرتی تھی۔ لاہور میں ان کی سیٹ کے بارے میں سوالیہ نشان ہے۔ تو نواز شریف خوش نہیں ہے۔ مرکز کے اندر بہرحال حکومت وہ بنا پائیں گے۔ پنجاب ان کے پاس موجود ہے، کمفرٹیبل میجورٹی ہے، 180 کے قریب ان کے پاس لوگ موجود ہیں۔ سو ان اے وے نواز شریف کے علاوہ پارٹی میں سبھی خوش ہیں۔ تو طلعت صاحب، یہ نہیں، نواز شریف صاحب کے علاوہ باقی سب خوش ہیں کہ
ये बात सिर्फ समझाएं तलत साहब। देखिए ये हुकूमत, अब हुकूमत उनकी बन जाएगी ना, PMLN और पीपल्स पार्टी हुकूमत बन जाएगी। आपने दुरुस्त कहा कि पीपल्स पार्टी वजारतें नहीं लेगी, तो एक क्लासिक अकलीती हुकूमत बनेगी नवाज शरीफ की पार्टी। लेकिन हर मामले पे उन्हें देखना पीपल्स पार्टी की तरफ पड़ेगा उनको। जी बिल्कुल होगा, लेकिन ज़ाहिर है बीच में जमानत देने वाले भी मौजूद हैं। आपने देखा होगा कि आर्मी चीफ ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने इंतखाबात के नताइज को प्रेज किया। एस्टैब्लिशमेंट जो है वो मौजूद है SIFC की सूरत में, तो निज़ाम को जोड़ने वाले जो हैं वो भी मौजूद हैं। लेकिन आपसे इत्तफाक करता हूं कि जब सियासी डायनेमिक शुरू होता है तो फिर आप वो जो ग्लू है जिसके जरिए आपने निज़ाम को जोड़ा हुआ होता है वो ढीली पड़ने लग जाती है। बहरहाल हुकूमत बन जाएगी तो हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे, उनके पास नंबर्स मौजूद होंगे, अकलीती हुकूमत अगरचे होगी, उनके पास मिनिस्ट्रीज होंगी, तो वो हिस्सा तो खुश हो गया। पंजाब में जिनके पास मिनिस्ट्रीज आएंगी, पंजाब में जो हुकूमत बनाएंगे वो भी खुश होंगे। अब नवाज शरीफ ने अपने आप को रिडीम करना था, पाकिस्तान को नवाज दो, ये नारा लगाया था उनकी जमात ने। ख्याल ये किया जा रहा था कि नवाज शरीफ जिस बुरे तरीके से निकाले गए थे, जिस अदालती कहर और जबर का वो शिकार हुए थे और इतना अरसा उन्होंने एग्जाइल काटी, उसके बाद आके एक रिडेम्पशन एक्ट उनको मिलेगा, वो होगा प्राइम मिनिस्टर बनने का। फिलहाल वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि उनकी जमात में नवाज शरीफ के अलावा तकरीबन सभी खुश हैं। ज़ाहिर है वो खुश नहीं है जो हार गए हैं, लेकिन तो तलत साहब वो जो पहले कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब इस मरतबा ये कहेंगे मुझे क्यों बुलाया, तो वो वाले सीन अब नजर आ रहा है कि वो अब यही कह रहे होंगे मुझे क्यों बुलाया है। और बहुत सारे लोग ज़ाहिर है अब एक तबसरा भी कर रहे हैं, जिस तरह शहबाज शरीफ का नाम नामजद किया गया वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए, तो लोग ये कह रहे हैं कि शायद अब नवाज शरीफ साहब का सियासी करियर खत्म हो चुका है। आप किस हद तक इस बात से एग्री करते हैं? देखें, ये नवाज शरीफ बज़ाहिर सियासत में तो आप हतमी तौर पर कुछ बात कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बज़ाहिर वो एक ट्वाइलाइट जोन में चले गए हैं, अपने कैरियर के ट्वाइलाइट जोन में चले गए हैं। उनको चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनने का जो मौका था वो ये वाला था, जहां पर अब शहबाज शरीफ मौजूद हैं। इसके बाद इंतखाबात कब होते हैं, वो ज़ाती तौर पर उसमें कितनी दिलचस्पी रखते हैं। देखें, जो लीडरान का हमारे ज़हन में तस्वर है ना, वो लीडरान वो नहीं रहते जब वो उम्र के इस हिस्से में दाखिल हो जाते हैं। नवाज शरीफ ने 5 एग्जाइल में गुजारे हैं, उनकी हेल्थ कंडीशन प्रिकेरियस अगर नहीं है तो जाहिर है अनसर्टन है, वो हैवी मेडिकेशन पर हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का साथी खो दिया, अपनी बेगम से उनकी बहुत मोहब्बत थी, वो जिन हालात में उन्होंने खोया, वो कॉन्स्टेंटली एक ग्रीविंग एक्स हस्बैंड है, विडोअर है। तो वो ग्रीविंग विडोअर जो है ना, वो अब ही इज एन ओल्ड मैन, अब वो उस किस्म की दिलचस्पी का मुजाहरा नहीं कर सकता सियासत के अंदर। तो अगर कोई तसव्वुर करे कि जी उन्होंने अगले इंतखाबात के लिए भी प्लानिंग की हुई है, तो आई विल बी रियली सरप्राइज। इन अ वे आप ये कह सकते हैं कि नवाज शरीफ का जो एक मौका था अपने आप को रिडीम करने का बतौर प्राइम मिनिस्टर बन के, वो उनको नहीं मिला। खोया नहीं, मिला ही नहीं। अच्छा तलत साहब, एक बात और भी है, जो 16 माह की PDM की गवर्नमेंट बनी उससे मुतालिक ज़ाहिर यही बयानिया रहा बिलखुसूस PMLN का कि अगर हम ना संभालते, ड्राइविंग सीट पर ना आते, मुल्क दिवालिया हो जाता, डिफ़ॉल्ट कर जाता। आज भी अगर कुछ रहनुमाओं से पूछो वो ये कहते हैं नहीं जी वो फैसला बिल्कुल दुरुस्त है, हालांकि कुछ रहनुमा मानते हैं कि वो फैसला दुरुस्त नहीं था। अब राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि वो तो फजलुर रहमान साहब ने हमें पुश किया इस गवर्नमेंट बनाने के लिए, हम इस प्लेटफॉर्म पर आए, हमने गवर्नमेंट बनाई, वरना हम तो बनाना नहीं चाह रहे थे। फजलुर रहमान साहब की बात करें, वो कहते हैं कि हम तो खुद चाहते उस वक्त इंतखाबात हो जाते। तो असल में उस वक्त कौन चाह रहा था कि गवर्नमेंट बने और कौन नहीं चाह रहा था कि बने? देखिए, नवाज शरीफ नहीं चाह रहे थे कि वो हुकूमत में जाएं। अच्छा। ये मैं आपको मुसद्दका इत्तला दे रहा हूँ। सही। राना सना की तरफ से भी यही कहा जा रहा था कि उनको इंतखाबात में जाना चाहिए। नून लीग की तरफ से शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि उनको हुकूमत में जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी की तरफ से आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे थे कि उनको हुकूमत में जाना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान जो है वो चूंकि सियासी तौर पर बड़े काइयां खिलाड़ी हैं, वो दोनों अतराफ पे खेल रहे थे। वो कह रहे थे कि हम इंतखाबात में जा सकते हैं, लेकिन अगर हुकूमत बनती है तो फिर उसमें उसका हम साथ देंगे। तो नवाज शरीफ की बिल्कुल कोई मर्जी नहीं थी हुकूमत बनाने की शहबाज, लेकिन चूंकि सियासत से दूर थे, लंदन में बैठे हुए थे, शहबाज शरीफ साहब का बड़ा इन्फ्लुएंस है ऊपर। ख्याल ये किया जाता है कि नवाज शरीफ का इन्फ्लुएंस रहा है शहबाज शरीफ के ऊपर, जो दुरुस्त है। लेकिन जब से नवाज शरीफ एग्जाइल में गए हैं, शहबाज शरीफ पार्टी को रन कर रहे हैं, उनके मुख्तलिफ हलकों के साथ ताल्लुकात बड़े गहरे हैं, उन्होंने काफी पुश किया कि शहबाज शरीफ साहब चाहते थे हुकूमत बने। ये एक बहुत ही मेरे ख्याल में भयानक फैसला था। अभी इस वक्त
कौन सी जमात को सूट करता है गवर्नमेंट बनना, 5 साल ऐवान का चलना? क्योंकि फजल रहमान साहब भी कहते हैं कि नहीं चलती नजर आ रही उनकी गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी भी बज़ाहिर तो ऐसे ही लग रहा है उनको। पीपल्स पार्टी हैज नथिंग टू लूज। देखिए, पीपल्स पार्टी की जो सियासत है वो सिंध को सिक्योर करने के गिर्द घूमती है। जब वो सिंध बेस को सिक्योर कर लेते हैं, उसके बाद फिर वो पंजाब के अंदर और मरकज के अंदर अपनी निगोशिएटिंग पावर लेके आते हैं। तो पीपल्स पार्टी ने अपनी बेस सिक्योर कर ली है, लोकल बॉडीज उनके पास है, कराची का मेयर उनके पास है, और सिंध से उन्होंने इस मरतबा रिकॉर्ड सीटें उठाई हैं। बिल्कुल। तो पीपल्स पार्टी फ्रैंकली अगर मरकज के अंदर हुकूमत नहीं चलती तो पीपल्स पार्टी की सीटें तो कहीं जाने की नहीं है, वो तो वहां पर मौजूद रहेंगी। किसी भी सूरत में, किसी भी इक्वेशन के अंदर वो बातचीत कर सकते हैं, वो पीटीआई के इंडिपेंडेंट्स के साथ बात कर सकते हैं। अगर पीटीआई को अपना निशान मिल जाता है और इलेक्शन करवा लेते हैं और किसी सूरत में वो पार्टी के तौर पर फाल हो जाते हैं तो उनके साथ बैठ जाएंगे। वो नून लीग की हुकूमत बनवा रहे हैं लेकिन उसके साथ उसका हिस्सा नहीं है, चूंकि उनके पास सीटें हैं तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ इंगेज कर सकते हैं। तो आई थिंक पीपल्स पार्टी इज इन अ विन विन पोजीशन। जिसको हुकूमत में नहीं होना चाहिए मरकज में, वो नून लीग है, मेरे अपनी राय। अच्छा, और वही नजर आ रही है और वही नजर आ रही है। ये PDM2 जो है, देखिए नून लीग ने शुरू किया था इस उम्मीद के साथ कि चूंकि उनका मुकदमा बड़ा तगड़ा है तो उनको 2/3 मिलेगी। इट वाज ऑलवेज रियली एन आइडियलिस्टिक सिचुएशन में 2/3 नहीं मिलने की थी उनको। फिर उनका ख्याल था कि उनको अक्सरियत मिलेगी, फिर उनका ख्याल था कि अगर अक्सरियत ना मिली तो इत्तेहाद मिल जाएगा। फिर अब वो 2/3 से अक्सरियत से इत्तेहाद से फिसलते हुए वो अक़लियती हुकूमत पर आ गए हैं। ये एक डिजास्टर्स और सही तरह से नेगोशिएट भी तो नहीं कर रहे तलत साहब। अगर आईनी ओहदे मांग रही पीपल्स पार्टी, वो दे रहे हैं, वो कैबिनेट में नहीं आ रहे, वो मान रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको लगता है कि PMLN भी सही नेगोशिएट नहीं कर रही पीपल्स पार्टी? उनके पास नेगोशिएटिंग कार्ड्स नहीं है। देखिए, जब आप इस सिचुएशन में अपने आप को डाल देते हैं कि ख्वाहिशात के ताबे आप काम कर रहे होते हैं, तो फिर उन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए आपको दूसरे की बात माननी पड़ती है। इस वक्त PMLN के लिए सबसे अच्छा जो दाव अगर सियासी तौर पर वो खेल सकते थे वो यही था। वो और एक रेडिकल दाव है जो वो कभी करेंगे नहीं, और वो ये था कि जिन सीटों के ऊपर सवालिया निशान उठाया जा रहा है, हम चाहते हैं उसके ऊपर रीपोलिंग हो। हम नहीं चाहते कि ऐसी सीटों के साथ हम मुंसलिक हो जिनके बारे में कहा जो वो करेंगे नहीं, लेकिन आप इमेजिन करें उसकी इम्प्लीकेशंस कितनी अच्छी होंगी। इस वक्त PMLN का मसला ये है कि उनको ये नहीं पता कि किन सीटों पर हारे हैं, उनको ये नहीं पता किन सीटों पर जीते हैं। तो नवाज शरीफ साहब एक स्टैंड लेके ये कह सकते थे कि ये अगर 22 सीटें तो इसको रीपोल करवाएं, हम सीटें अपनी वापस करते हैं। हो सकता है वो सारी सीटें हार जाएं, लेकिन अगर वो हारते भी हैं तो उनको पता होगा कि असल में उनका जुस्सा कितना है पार्लियामान के अंदर। दूसरी बात, उनके पास पंजाब सिक्योर है, उनके पास 180 के करीब लोग मौजूद हैं। अगर उन 180 में से 30 सीटों के ऊपर भी लोगों का ख्याल है कि डंडी मारी गई है तो 30 सीटें कंसीड करके फिर भी वो हुकूमत बना सकते हैं। दे शुड सिक्योर पंजाब, और मरकज के अंदर दे शुड गो फॉर अ रीपोल। वो नहीं करेंगे। दूसरा, वो ये कर सकते थे जी कि हम इन्हीं सीटों के साथ अपोजिशन में बैठ जाते हैं और पीपल्स पार्टी इंडिपेंडेंट्स के साथ मिलकर हुकूमत बनाए, 100 बिस्मिल्लाह, और एस्टैब्लिशमेंट ने हुकूमत चलानी है, अगर सपोर्ट करना है तो 100 बिस्मिल्लाह करे। हम अक़लियती हुकूमत का हिस्सा बन के अपनी पार्टी को मजीद खज्जल नहीं करना चाहते। यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब नहीं मानते तलत साहब, पंजाब की जिस तरह से बात हो रही है, वहाँ पर मरियम नवाज के को ये ओहदा देना, आप इसको किस तरह देखते हैं? क्योंकि ज़रा क्रिटिसिज्म तो चल रहा है कि इससे पहले कोई ओहदा उनके पास नहीं था, एक्सपीरियंस्ड हैं नहीं है, कॉम्पिटेंट हैं कि नहीं है, चैलेंजेस है पंजाब में काफ़ी सारे। आप इस पूरे डिसीजन को किस तरह देखते हैं? देखें, एक तो हमारा जो मुआशरा है ना, वो बुनियादी तौर पर किसी भी खातून को किसी अहम ओहदे पर नहीं देख सकता। मुझे बेनज़ीर भुट्टो साहबा की याद आ रही है, जब उनके पास पार्टी गई थी तो सबसे ज्यादा उनको रेजिस्ट करने वाले उनकी पार्टी में होते थे अंकल्स ने छोड़ दिया था उनको, उन्हें अलग जमातें बना ली थी। उन्होंने कहा जी कल की बच्ची है, हम इसके साथ क्यों बैठे। लुक एट व्हाट शी डिड फॉर हरसेल्फ। जो वैसे भी हमें ख़वातीन को ताकतवर ओहदों पर देखना पसंद नहीं है क्योंकि मर्द डोमिनेटेड जो मुआशरा है। किसी ने ये सवाल जो है बुज़दार साहब के बारे में नहीं उठाया था। बुज़दार साहब जो हैं, उनको इमरान खान ने वसीम अकरम प्लस का टाइटल दे दिया और सब लोग उसको वसीम अकरम प्लस ही कहते रहे। बुज़दार साहब कौन थे, कहां से आए थे, किसी को कुछ नहीं पता। मोने सलाही को चीफ मिनिस्टर बनाने की बड़ी ख्वाहिश होती थी और लोग कहते थे जी कि बड़ा जबरदस्त आदमी है। उनके पास 2.5 जिलों के अंदर 4 उनके पास सीटें होती थी। कहने का मकसद ये है कि मरियम नवाज खातून होने के नाते उनके खिलाफ हमेशा से कैंपेन चलती रहेगी। इस वजह से नहीं वो मरियम नवाज है, उनके जेंडर का इशू है। अगर वो होते से हुसैन नवाज
तो उनके बारे में ये बातें नहीं की जाती। ये बात दुरुस्त है। तो सिर्फ इस बुनियाद पर तनकीद ना हो कि वो खातून है। वक्त मतलब मुख्तसर था, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे।